really intelligent, then I want to know. Knowing is my character. Even to say that I want to know is not very appropriate, because wanting seems like desiring. Then knowing is my character. Can I be a department topper and know everything that is written in my textbook and yet not know the name of the butler in the mess? That only proves that my attention is very fragmented, very narrow. I will call it focus. I am not really curious. If I am really a student, I will study all that is available, because I just want to know. I just want to know. I am not saying I accumulate all kinds of garbage. मेरा भूमि किस ब्रांड का अंडरवियर पहनता है? I'm not talking of that. I just want to know. And that knowing will be all pervasive. First thing I want to know is my own mind. इसीलिए मुझे बहुत ताज्जुब होता है जब मैं देखता हूँ कि सो कॉल्ड अच्छे स्टूडेंट्स भी अपने आप से कितने कटे हुए हैं, so divorced from themselves. उनको यही नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है, what is the stuff their mind is made of. They have no idea. And they are so-called good students. And then you realize that all this is happening because study is a responsibility for them which they are just doing efficiently. They are efficiently studying and carrying on fulfilling their responsibilities. They have no real love for knowing. Because the one who has love for knowing, his knowing never stops. His knowing cannot stop. It's an ongoing thing, lifelong. Lifelong and object independent. ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये पता ही नहीं करना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है. बात समझ रहे हैं? If I'm really a student, then I study, then I'm observant. आप कुछ ऑब्जर्व करते हो तो क्या वैसे कहते हो बाकी सब हटा दो, टनल विजन, मैं सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ? नहीं. To observe is to observe choicelessly. Without choice I observe. Without interference I observe. All that is going on, the totality of it. बात समझ रहे हो मेरी? नहीं. अभी कैसे समझ में आएगी? क्योंकि आपने तो ये देखा है कि सब कुछ फ्रेगमेंटरी रहा है. जब मैथ्स का पीरियड होता है तो मैथ्स का पीरियड है, उसमें फिजिक्स की बात नहीं होती. जब फिजिक्स का पीरियड होता है तो उसमें हिंदी की बात नहीं होती. आपने हर चीज़ को तो बटे-बटे देखा है ना, टुकड़े-टुकड़े. एक टीचर आता है वो आपको 88 मार्क्स दे जाता है, दूसरा आपको 30 मार्क्स दे जाता है. There is no integration in any of this. No one looks at the totality of your being. और अभी ये समझ पाने बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है. बट लाइफ ऐसी ही है, उसमें टुकड़े नहीं होते, उसमें टोटलिटी होती है. What is action? What is result? In our degree course, we have to complete 100 hours of ASO, and for that I used to go for hockey. And in the earlier days, I just found do exercise and not to play game, just to practice what is this rubbish. But after some time, I found it is very interesting, and now I used to go on weekends as well. This is it. You exemplify. All right. What is action? What is result? If action comes from intelligence, result is just a surprising picture. We don't have to worry at that moment of action. So we can say that action is. If action is performed by intelligence. Take two different things. A word is called action and a word called activity. The spontaneous expression of intelligence is called action.
इंटेलिजेंस से जो होता है स्पॉन्टेनियसली उसे कहते हैं एक्शन, और कंडीशनिंग से जो निकलता है उसे कहते हैं एक्टिविटी। ये आपको समझ में आ रही है बात? मोस्ट ऑफ अस आर बिजी विद एक्टिविटी 99% ऑफ द टाइम। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस फॉर एक्शन इन आवर लाइफ। एक्टिविटी ये है, ये एक्टिविटी चल रही है, और एक्शन वो है जो अंडरस्टैंडिंग से निकलता है। अब रिजल्ट क्या होगा? व्हाट इज रिजल्ट? विल टेल मी। Is it the consequence of action or is it contained in the action? Is it the consequence of action or is it contained in the action? तुमने आज कुछ गड़बड़ करी और तुमको HIV का वायरस लग गया। अब 6 साल बाद तुम्हें एड्स होता है। The brain may think that there is a gap of 6 years between the action and the result, because the brain is time, so it will always bring time in between. लेकिन जो जानता है वो जानता है कि ये टाइम निकाल दो, जो होना था वो उसी दिन हो गया था, जो होना था वो उसी दिन हो गया था। The result is contained in the action. Let me put it this way, the action is its own result. The action is its own result. लेकिन चूंकि उनके बीच में टाइम का फासला रहता है, तो इसीलिए ब्रेन हमको ये धोखा दे देता है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो अंडरस्टैंडिंग में है उसको इसी वक्त रिजल्ट मिल ही रहा है, और जो अंडरस्टैंडिंग में नहीं है उसको भी इसी वक्त उसका रिजल्ट मिल ही रहा है। भविष्य कुछ नहीं है, फ्यूचर कुछ नहीं है, जो होना अभी हो रहा है। इज दिस क्लियर? Result and action are both interlinked and they happen together. It is there, it is very much there. और एक्शन भी दो तरह का, एक तो फिजिकल होता है, वो चूंकि दिखाई पड़ता है तो हमको फिर भी हो जाता है कि इसका रिजल्ट मिलेगा। जो ये थॉट्स है ना, ये भी एक्शन है। हम सोचते हैं कि चूंकि कोई देख नहीं पा रहा तो इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, बट एवरी थॉट दैट यू हैव, एवरी थॉट दैट यू अलाउ टू प्रॉस्पर कंडीशंस योर माइंड, उसका भी तुम्हें रिजल्ट मिल ही जाता है। एवरी थॉट इज ऑल्सो एन एक्शन, उसका भी रिजल्ट तुम्हें मिल ही रहा है, कॉन्टिन्यूसली मिल जाता है, उसी समय मिल जाता है। द मोमेंट द थॉट कम्स, इट हैज फर्दर कंडीशनड योर माइंड, फर्दर इट हैज कंडीशनड योर माइंड। ब्रेन वैसे ही कंडीशन है, और थॉट्स लाओ और कंडीशनिंग हो। और बोलिए नेक्स्ट। Sometimes we see that the result is also by the surroundings or the other external factors. For a person who prepares for exam, where he knows everything, but he needs to use the exam, and then the result doesn't come as he expected it. If I'm really enjoying preparing for my exam, have I already not got the result? What is the result? If I have really enjoyed preparing for the exam, रिजल्ट क्या मिल नहीं गया? क्या रिजल्ट मिल गया? तो एंजॉयमेंट ही तो रिजल्ट था। अब मुझे और क्या रिजल्ट चाहिए? पर तुमको बात अजीब लगेगी, क्योंकि तुमने कभी जेई में कुछ भी अपने मजे में तो पढ़ा नहीं है, तुमने इसलिए पढ़ा है कि आगे कुछ और मिल जाए। द रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड।
If I really studied in enjoyment, have I not already received the result? और क्या रिजल्ट मिलना है मुझे? क्या उसमें कॉम्पीट करोगे? क्योंकि कंपटीशन रहती है. I suppose competition is one of the words you have written down. जब पानी पीते हो तो कॉम्पीट करते हो कि मैंने 1 गिलास पी, वो भी 1.5 गिलास तो नहीं पी रहा. These are innate things, right? अपनी होती है. When you are in love, do you compare, do you compete, do you wait for a result? कि मैं 30 सेकंड तक गले मिलता हूँ. क्यों? क्योंकि पड़ोसी 25 सेकंड तक मिलता है. The action is its own result. The action is its own result. मिल तो लिए गले, अब और क्या चाहिए? पर नहीं, अभी रिजल्ट कहाँ मिला? रिजल्ट तुम्हें हर चीज में रिजल्ट चाहिए. जो भी करोगे उसमें आगे कुछ ना कुछ कैरेट लटकती रहनी चाहिए कि ये करने से वो मिलेगा. जो भी कर रहे हो उसके लिए नहीं कर सकते. सर अगर हम उसी के लिए कर रहे तो यहाँ थोड़ी बैठते थे. यहाँ आए क्योंकि आवाज मिलेंगे, जो भी मिलेगा. क्या मिलता भैया? क्या ऐसा ये तो हर काम को तुम रिजल्ट के लिए कर रहे हो ना. तुम ये नहीं समझ रहे कि जो अभी चल रहा है ये अपने आप में रिजल्ट ही तो है. और क्या है? अब और क्या रिजल्ट मिलेगा तुम्हें इससे? ये हम तो समझ जाए, और मम्मी आपको कैसे समझे? हम तो बोल देंगे जेई कह रही बड़ा मजा है, रिजल्ट मिल गया. सेलेक्ट नहीं हुए, रिजल्ट कहाँ से मिलते हैं? हाँ, यही दिक्कत है ना. हम तो मजे लेके छोड़ देंगे और हमको क्या समझे? तुम समझ जाओ, सब समझ. तुम तो समझो. और बताइए. रिलेशनशिप, टेक अ ब्रॉडर वर्ड. रिलेशनशिप, अ ब्रॉडर वर्ड. रिलेशनशिप लिखो, कॉलम बना दो. एक के ऊपर लिखो रिलेशनशिप, एक के ऊपर लिखो रिलेटिंग. रिलेशनशिप एंड रिलेटिंग. रिलेशनशिप में लिखो comes from past. रिलेटिंग में लिखो is in the present. रिलेशनशिप में लिखो is an identity. is an ego, is an identity. रिलेटिंग में लिखो नो आइडेंटिटी. रिलेशनशिप में लिखो इज अ ड्यूटी, एन ऑब्लिगेशन. रिलेटिंग में लिखो जॉय. क्लियर? क्या क्लियर? एक रिलेशनशिप वो होती है जो डेड होती है, जो पास्ट का कैरी ओवर होती है. समझ गए? मुझे बता दिया गया है कि ये मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, और पास्ट से और चले आ रहे हैं. उनसे मेरा कोई असली संबंध नहीं. देयर इज नो रियल कम्युनियन. और एक रिलेटिंग होती है जो इन द मूवमेंट होती है. कि अभी हम दोनों बैठे हैं, जरूरत ही नहीं है कि हमारी कोई आइडेंटिटी बेस्ड पहचान हो, बट देयर इज अ क्लियर कम्युनियन. उसे कहते हैं रिलेटिंग. अब दोस्ती भी दो तरह की हो सकती है. एक वो जो सिचुएशनल है, जो एक बोझ की तरह है, और एक वो जो प्रेजेंट में है, राइट नाउ है. बात समझ में आ रही है? रिलेशनशिप रिलेटिंग का अंतर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? रिलेशनशिप मतलब एक संबंध जो आप अतीत से लेकर के आ रहे हो. रिलेटिव मतलब वो जो दो एंटिटीज के बीच में अभी अभी है. दिस यू कैन कॉल एज लव आल्सो.
Relating is love. रिलेशनशिप में लिख दो डिपेंडेंसी. लोनलीनेस. रिलेटिंग में लिख दो फ्रीडम. समझे बात? I am dependent upon somebody. That is a relationship. In my freedom, I am communing with you. This is relating. तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए बात सही है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या चाहे जो भी हो, चाहे घर वालों से संबंध हो, चाहे देश से संबंध हो, चाहे इंस्टीट्यूट से संबंध हो, कुछ भी. Is it based upon some obligation or is it based upon my love in the moment? Not a memory of the love. Not a memory of love. Love right now. Here